So very good morning, online and offline students. Today we are going to discuss the last topic of the chapter, towns, traders and craft persons, new towns and traders. In this chapter we studied that so many traders attracted towards the Indian land. हमने डच के बारे में पढ़ा. We studied about Dutch, Portuguese, English और इन सब ने यहाँ पे क्या बना के भेजी अपनी India company. Why these companies were made to do the trade over here? But slowly and gradually they wanted to make some political and administrative control. So rather than these Surat, Hampi and Masulipatam, they also made their factories or center at Bombay, Kolkata and Madras. वहां पे भी hold रखा. And they tried to control the sea routes. When they came over here, there were many traders, Indian traders, those who refused them, those who fought with them, but at last they were defeated and they became the agents of these companies. और इन companies में से when we are talking about Dutch, Portuguese और English, इनमें से जो सबसे ज्यादा जो सरकार जो लास्ट में रही that was English East India Company. English East India Company. When they started doing work over here, यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया. मेन क्या हुआ, जो हमारे क्राफ्ट पर्सन्स थे जो पहले टोटली इंडिपेंडेंट थे, अपनी मर्जी का काम कर रहे थे, now they had to do work under these European companies. इनको जो डिजाइन बनाने को कहा जाता था वो बनाया जाता था. उनको कहा था कॉटन की कल्टीवेशन करनी है तो they only done the cultivation of cotton. They were forced to make up, मतलब आपने कॉटन क्लॉथ बनाना है, उस पे स्पेसिफिक डिजाइन बनाना है, and they were not supposed to sell their clothes in the market. अब वो किसके लिए काम कर रहे थे? For the European companies. जो हम कह रहे हैं आपने उसके अकॉर्डिंग काम करना है, अपना दिमाग यूज नहीं करना. अपने जो आप वीव कर रहे हो क्लॉथ को उसको मार्केट में जाके नहीं बेच. अगर बेचने भी जाते होंगे तो one was there to purchase that cloth. So in this we studied about that the great Indian traders like Mullah Abdul Ghaffar and Veerji Vora had owned a large number of ships. They competed with these companies, but इनके पास मिलिट्री पावर, नेवल पावर बहुत ज्यादा थी, डिफीट हुए and at last they became the agents of European companies. Because these European companies set up their factories over here, तो यहाँ पे फैक्ट्री गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई. अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ? क्राफ्ट पर्सन्स का. मशीन मेड गुड्स बिकेम पॉपुलर. और मशीन से जब कोई चीज बना रहे हो तो एक बारी में काफी सारी, मतलब आप गुड्स बना सकते हो. सिंपल, आप कभी कोई चीज, हम जैसे पहले होता ना कि नीचे हम एक बोर्ड पेपर रखते जिससे हमारी जो हम लिखते हैं whatever is getting written on the other page, क्या होता है वो? हाँ, टाइपराइटर नहीं, but paper we use, whatever we want to write that is also come on the that page. हाँ, ब्लू कलर का होता है. हाँ, कार्बन पेपर. अब उस टाइम हम कितने रखेंगे? 1 2 रख लेंगे. अगर 3 4 रखेंगे तो नीचे वाली जो लास्ट कॉपी होगी वो बहुत लाइट उसमें आती है. अब क्या है, वी आर हैविंग द फोटोकॉपी मशीन. एक बारी में आप कितनी सारी, आप अब जो मैनुअली लिख रहा है दैट विल टेक टाइम. जैसे स्क्राइब्स होते थे, दे वर द पर्सन दोज हु जस्ट कॉपीड द मैन्युस्क्रिप्ट, वो हैंड से करते होते थे, दैट विल टेक टाइम आल्सो. उसमें चेंजेस भी आते थे. पर अब हमारे पास क्या है? फोटोकॉपी मशीन. जितनी मर्जी फोटोकॉपी करवा लो. प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग करवा लो, आप जितनी मर्जी प्रिंटिंग करवा लो. तो उसी तरह जब ये फैक्ट्री सेटअप हुई तो हु वर इफेक्टेड द मोस्ट? द क्राफ्ट पर्सन्स. नाउ अब the 18th century saw the rise of Bombay, Calcutta and Madras, which are nodal cities today. मतलब आज के टाइम पे भी इन सिटीज की बहुत इंपॉर्टेंट है. मेट्रोपॉलिटन सिटीज आर दीज, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी. which craft
and commerce underwent major changes as merchants and artisans were moved into black towns established by Europeans. अब black towns किसके लिए बने होंगे? इंडियंस के। जो इंडियन क्राफ्ट पर्सन्स थे, जो आर्टिसंस थे, उनको अलग जगह पे रख दिया गया। उनको क्या नाम दिया गया? ब्लैक टाउन्स। यहाँ पे कौन रह रहा था? इंडियन क्राफ्ट पर्सन्स एंड आर्टिसंस। Indian craft persons and artisans were living in which towns? Black towns. The blacks or the native traders and craft persons were confined to these. मतलब जो भी particularly इंडिया से जो persons थे, जो ट्रेड कर रहे थे, जो craft persons थे, वो कहाँ पे रहेंगे? In the black towns. तो उन्होंने अपने लिए क्या बनाया होगा? White towns. White towns. So while the white rulers occupied the superior residency, अब जो white rulers थे, जो ब्रिटिशर्स थे, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, वो कहाँ रह रहे थे? रेसिडेंसीज ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास और फोर्ट सेंट विलियम्स इन कोलकाता। उन्होंने अपने रहने का कहाँ पे बनाया कि they were going to live in Fort St. George in Madras and Fort St. Williams in कलकत्ता। द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट पर्सन्स, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। मतलब डे बाय डे व्हेन दीज यूरोपियन कंपनीज केम ओवर हियर, जो हमारा यहाँ पे जो क्राफ्ट वर्क था, जो आर्टिसंस थे, दे स्टार्टेड डिक्लाइन। वो अपनी मर्जी का काम नहीं कर सकते। दे वर टोटली डिपेंडिंग अपॉन द यूरोपियन कंपनीज फॉर देयर वर्क। और उसके लिए उन्होंने अलग अलग एरियाज भी डिवाइड कर दिए कि जो इंडियन ट्रेडर्स हैं, जो इंडियन क्राफ्ट पर्सन्स हैं, दे वर लिविंग इन द ब्लैक टाउन। और व्हाइट की जो उनकी रेसिडेंसीज कहाँ बन गई? 2 रेसिडेंसीज वर देयर। फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास, मद्रास में सेंट जॉर्ज फोर्ट है वहां पे, एंड द फोर्ट सेंट विलियम्स इन कलकत्ता। ये मेन सिटीज बनाई। और ब्रिटिशर्स के टाइम पे जब उन्होंने इस पे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किया, ये तीनों ही क्या बन गई? प्रेसिडेंसीज ऑफ ब्रिटिशर्स, that you are going to learn in the next class also. So with this your chapter is finished. अब यहाँ पे है वास्को डी गामा, द क्रिस्टोफर कोलंबस, they discovered the sea route. ठीक है, वास्को डी गामा, Portuguese sailor, sailed down the African coast and went round the Cape of Good Hope and crossed over the Indian Ocean. His first journey took more than a year and he reached the Calicut in 1498 and returned to Lisbon, the capital of Portugal, the following year. अब जब उसने वो जर्नी की तो उसके टाइम पे उसको काफी डिफिकल्टीज भी आई। He lost 2 of his 4 ships and of the 170 men at the start of the journey, and only 54 survived. In spite of all these hazards, the routes that were opened up proved to be extremely profitable. Who discovered the sea route? Vasco da Gama, Portuguese sailor. He was the one who discovered that. ठीक है, उसको डिफिकल्टीज आई, काफी उसने प्रॉब्लम्स फेस की, पर एट लास्ट जो वो सी रूट डिस्कवर हुआ जिसके थ्रू ट्रेडिंग हो सकती थी, दैट ओपन वे टू मेनी अदर कंट्रीज आल्सो टू कम एंड डूइंग ट्रेड ओवर हियर. The search of sea routes to India had another unexpected fallout on the assumption that the earth was round. अब पहले क्या लगता था कि जो ये सीज है, ओशियन है, जब दूर तक देखो इसका मतलब वहां तक पहुंचोगे तो वहां पे क्या है, जो अर्थ है वो एकदम ऐसे फ्लैट है, तो आप वहां से जाके क्या हो जाओगे, ऐसे नीचे गिर जाओ. अब ये भी प्रूव करना था कि दैट अर्थ इज राउंड इन शेप. तो उसके लिए Christopher Columbus, an Italian, decided to sail westward across the Atlantic Ocean to find a route to India. अब वो अटलांटिक ओशन से स्टार्ट हुआ और इंडिया तक आना था, तो जब तक वो चला तो ऐसे राउंड करके आएगा ना इस तरह से, तो जब वो राउंड लगा रहा है तो इसका मतलब क्या है, दैट अर्थ इज राउंड. So he landed in West Indies, got their names because of his. In 1492, he was followed by sailors and conquerors from Spain and Portugal who occupied large parts of Central and South America, often destroying earlier settlements in the area. मतलब कई सारे ऐसे sailors आए हैं जिन्होंने new lands को discover किया. From this chapter, the questions that we are going to do first, just fill in the blanks. The Raja Rajeshwara temple was built in Thanjavur.
Ajmer is associated with the Sufi saint Khwaja Muinuddin Chishti. Hampi was the capital of Dash Empire, Vijayanagara Empire. The Dutch established a settlement at Masulipatam. True, false? We know the name of the architect of the Raja Rajeshwar temple from an inscription. True. उसने अपना नाम inscribe करवाया हुआ है ना वहाँ पे? Yes. Merchants prefer to travel individually rather than in caravans. False. Kabul was a famous center for trade in elephants. False. ये horses के लिए famous रहा है. Surat was an important trading port on the Bay of Bengal. False. False. अब ये थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन इसको हम बुक में ही कर लेते हैं. हाउ वाज वाटर सप्लाइड टू द सिटी ऑफ तंजावर? यस अक्षरा. From wells and tanks. Write down the answer on your book, beta. These questions we are not going to do on the notebook. Who lived in the black towns in the cities such as Madras? Indian native traders and craft persons. Native traders and craft persons. Written? तो इसमें से जो क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू यू थिंक टाउन्स ग्रू अराउंड द टेम्पल्स? हाउ इम्पोर्टेंट वर पर्सन्स फ्रॉम द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स? 5th एंड 6th हो गया बेटा. इसके बाद जो हम करेंगे 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन. राइट अ नोट ऑन हम्पी, सूरत एंड मसूलीपट्टनम. 3 notes. Write a note on Hampi, write a note on Surat, write a note on मसूलीपट्टनम. उसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा. आर्किटेक्चर कवर हो जाएगा, डिक्लाइन कवर हो जाएगा, व्हाई दीज सिटीज और टाउन्स वर फेमस. ठीक है, ये सब कवर हो जाएगा. नाउ जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन है ना, व्हाई डिड पीपल फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स विजिट सूरत? So when we are going to write a note on Surat, वो all points will be covered over there. Okay, 3 extra questions and 2 questions, 5 and 6. So we are going to do the map work from this chapter, important centers of trade. So in the West Bengal, we are going to mark Calcutta. Above that, मतलब उसके ऊपर ही आपने एक और पॉइंट लगाना है, but that should be below the Tropic of Cancer. So ठीक है, that point is your Murshidabad. That is your point is known, that is Murshidabad. Murshidabad. Then कोस्टल आंध्र प्रदेश. अब देखो कोस्टल आंध्र प्रदेश पे था, कौन सा टाउन था हमारा इंपॉर्टेंट कोस्टल आंध्र प्रदेश पे? यहाँ पे that was मसूलीपट्टनम. और कौन सा हमने पढ़ा यहाँ पे टाउन? सूरत. मेरा गुजरात, एक गुजरात है यहाँ पे. ठीक है, अब if this curve is visible to you, above that you are going to mark and circle. This place is Surat. This place is Surat. हो गया सूरत. आप जिसके पास डॉटेड मैप है वहां पे आपको उसकी कैपिटल, गुजरात की कैपिटल क्या है? अहमदाबाद. यहाँ पे वो पॉइंट लगा हुआ है गांधीनगर. शुक्र है, पता है, पक्का ना? हाँ, चलिए ठीक है. तो यहाँ पे जो ये कर्व है इसके ऊपर आप सर्कल लगाओगे. यहाँ पे आप क्या लिखोगे? अहमदाबाद. व्हाट यू आर गोइंग टू राइट? अहमदाबाद. बेटा नीचे नीचे नीचे. अब ये भी ध्यान रखना, गुजरात में ही मार्क करना है. गुजरात के साथ ही आपकी महाराष्ट्र की बाउंड्री भी स्टार्ट हो जाती है. तो ये देखो यहाँ से कोस्टल एरिया भी है, यहाँ तक ये बेंड होके इधर आ रहा है, ये गुजरात का पोर्शन.
नेक्स्ट इज बॉम्बे। हेयर जहां पे आप मुंबई को मार्क करते हो महाराष्ट्र में, ठीक है, दिस प्लेस इज बॉम्बे, दिस प्लेस इज बॉम्बे। Why I am marking all these? क्योंकि ये कब बने, जब ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स बनाए गए थे बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सूरत के साथ साथ और कौन सा इंपॉर्टेंट हमने टाउन पढ़ा था, हम्पी का। क्या पढ़ा था, ये कौन सा स्टेट है महाराष्ट्र के नीचे, ये वाला कब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे here you are going to mark Hampi. Here you are going to mark Hampi. Done? बिदरी वर्क कहाँ का फेमस वर्क था क्राफ्ट पर्सन्स का, बिदरी, बिदार कहाँ का था, बिदार। यही देखो ये कौन सा है हमारा स्टेट, कर्नाटक। ये वाला कर्व यहाँ पे पॉइंट करके दिस प्लेस इज मार्क्ड एज, हो गया, डन। अब एक और प्लेस पढ़ा था हमने, बरार। अब ये कौन सा एरिया आ गया आपका, कौन सा एरिया आ गया, ये वाला कौन सा स्टेट है, तेलंगाना। अब देखिए महाराष्ट्र में ये वाला, ये जो कर्व दिखाई दे रहा है, इस कर्व, ये वाले कर्व के सामने आप वो लगाओगे डॉट और यहाँ पे क्या भरोगे, बरा। फिर एक और सेंटर बनाया था कंपनीज ने, एक तो कलकत्ता हो गया, एक बॉम्बे हो गया, एक क्या है मद्रास। कहाँ पे आएगा वो, तमिलनाडु। ये वाला, ये वाला, यस तमिलनाडु। यहाँ पे क्या मार्क होगा, मद्रास। चोलास की कैपिटल पंजाब, ठीक है। वो हम देखो ये ऐसे एल शेप में आ रहा है इधर, है ना, तो यहाँ पे मार्क करेंगे दैट इज योर पंजाब। पंजाब। एक और भी बना है मदुरई, मदुरई। वो आपका जो ये नीचे जो ये कर्व है, हियर इट इज मदुरई। मदुरई। कुतुबशाही रूलर कहाँ के थे, कुतुबशाही रूलर्स ऑफ गोलकोंडा, गोलकोंडा के थे ना, मसूलीपट्टनम में पड़ा था, आसपास का एरिया ना, ठीक है। तो क्योंकि पहले क्या था, वो आंध्र प्रदेश वो सारा सिमिलर सेम था ना, ठीक है। अब यहाँ here it is, ठीक है जी। अब एक और प्लेस पढ़ा था जहाँ पे इस्लाम और हिंदुइज्म का को एग्जिस्टेंस, अजमेर। अब उसको लोकेट करने का इजी तरीका क्या है, राजस्थान में करना है हमने। हाउ टू लोकेट, देखिए ये बाउंड्री वाला है, ये देखिए ये वाली बाउंड्री दिख रही है आपको, ठीक है। और यहाँ से ये कब, यहाँ से ये कब दिखेगी, एक यहाँ पे आप ऐसे, मतलब इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। आपने ऐसे इमेजिनरी लाइंस बना के द प्लेस दैट यू आर गोइंग टू लोकेट दैट इज अजमेर। ये वाला कर्व देखो, कौन सा स्टेट है ये, ठीक है। यहाँ से ये बाउंड्री ऐसे आ रही है, ठीक है। और यहाँ से जो ये कर्व है, यहाँ से ये लाइन है, जैसे वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, वहां पे क्या आप लोकेट करोगे, अजमेर। अजमेर।
अब देखिए मैं बोल रही हूँ कि हमने ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर लिए। अहमदाबाद कर लिया, अजमेर, सूरत, बीदर, बरार, बॉम्बे, हम्पी, मद्रास, तंजावर, मदुरई, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, गोलकोंडा। कितने हो गए? ये वाला एरो दैट इज फॉर द अहमदाबाद। 40 done? Yes, do it. So this is the map work that you have to do. ठीक है, hurry up, do it fast.